Hi, good evening. I'm Rupa Soni, and you are watching us live on SoulFit. And today we are back again with a very, very important and relevant topic, a common problem. And I think a problem of you, me, our parents, ourselves also, our children also, because of their sedentary lifestyle. Then we talk about acidity, gas, bloating, flatulence, heartburn. And to talk about it all, I have a very apt and eminent guest, Dr. Vipul Khandwal, who is a gastroenterologist with an experience of more than 10 years. Hi, Dr. Vipul. Welcome to Soulfit. Hi, hi, good evening, So, all. yeah, and he is also the director of Arogya Dham, a super specialty hospital. He has many publications and awards to his credit. His hard work and dedication can be seen in his work. Happy faces of the patients when they come out of Arogya Dham and his treatment can be seen everywhere. So I welcome Dr. Vipul for sparing his valuable time. Welcome, Doctor. Thank you, Rupa, for giving me this opportunity to share something which is very close to my heart because this is what I deal in daily in my Yeah. work schedule, and happy to share with all I have regarding this disease with all the all the listeners who are now associated with us. Yeah. So nice of you, doctor. So to start up with the session, आपको मालूम है डॉक्टर आपके पास बहुत पेशेंट्स आते होंगे. They've been talking about गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग है, सुबह उठ के ब्लोटिंग, शाम को एसिडिटी. क्या खाएं, क्या करें? We don't know. So सबसे पहले तो डॉक्टर विपुल, it is very important to clear one thing, to differentiate between acidity, bloating, flatulence. Actually, other time we do not come to know कि हमें हो क्या रहा है एक्चुअली. Is it bloating or is gas कि acidity है? So please throw some light to introduce the whole session like this. Yes, Rupa. So I just will give you a brief example. Around 3 days back, there was a 55-year-old middle-aged lady who was known. Her son is a medical representative, and he had called me 5 days, and he said because he is उन्होंने मेरे से कहा कि सर मम्मी को पेट फूल रहा है और she was a obese lady. And then Okay. he stayed somewhere near to some hospital. So sometimes what Rupa you meant and what I mean to discuss today to all our audiences, ki whether we say it is flatulence, whether we say it is bloating, whether we say it is acidity, तो अगर उसको ब्रॉडली टर्म करूंगा वो कुछ ना कुछ गैस्ट्रो रिलेटेड इश्यूज हैं. तो whenever we have a gastro related issues, we make sure that की फ्लैटुलेंस जो आप पूछना चाह रहे हो, एसिडिटी क्या है, फ्लैटुलेंस क्या है. तो एसिडिटी तो ठीक है, एक हार्ट बर्न वाली सेंसेशन है कि हम कभी भी कुछ कहते हैं तो लोग नॉर्मली कहते हैं कि मेरे मुंह में थोड़ा थोड़ा डॉक्टर साहब जब मैं सोता हूँ उठता हूँ तो खट्टा पानी आना. सो ये सब एक एसिडिटी वाले. और एसिडिटी को हम गर्ड बोलते हैं. बहुत टेम्पलेट लोग हो गया, फ्लैटुलेंस हो गया. फ्लैटुलेंस मतलब गैस. whenever हम गैस मतलब एयर की या गैस की बात करते हैं तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्लैटुलेंस और एसिडिटी. एंड व्हेन देयर इज समथिंग रिलेटेड ईदर टू गैस और लिक्विड तो हम उसे ब्लोटिंग बोलते हैं. तो मैं जो एग्जांपल दे रहा था, तो दैट लेडी केम टू मी एंड जो गैस की प्रॉब्लम थी पता चला कि शी हैड एन एक्यूट अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स वर परफोरेटेड. तो अब अगर आप रैंक हूं तो मैं कहता हूं कि कुछ भी चीज है, मेक श्योर यू कंसल्ट योर फैमिली फिजिशियन फर्स्ट. एनी डॉक्टर वेदर he's a specialist, he's a super specialist something. लेकिन मैं अब इन टर्म्स को इतना खतरनाक है मेरे लिए रूपा कि मुझे नहीं मालूम कि समटाइम्स ब्लोटिंग में मैं देखता हूँ कि आई हैड सीन कैंसर्स रिलेटेड टू ब्लोटिंग. I had seen tuberculosis, intestinal tuberculosis related to bloating. तो मैं अगर कोई भी अब सबसे ये कहता हूँ कि अगर कुछ चीज इशू इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, 2-3 दिन का है, वेर वी टॉक अबाउट एसिडिटी या वी टॉक अबाउट गैस. अगर कोई चीज परसिस्टेंटली आपको परेशान कर रही है, इट इज ब्लोटिंग, इट इज फ्लैटुलेंस, इट इज एसिडिटी, make sure you see a family physician first. Let him put a stamp of it is a
जो भी है, मेडिकल और सर्जिकल, देन वी प्रोसीड फर्दर. या सो डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जो लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, इट इज अ गट रिलेटेड इशू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ रिलेशन विद आवर डाइट, आवर लाइफस्टाइल, एंड सबसे पहले क्या होता है, वी स्टार्ट पॉपिंग अप अ पिल. सबसे इजी वे होता है कि सुबह उठे, एक एसिडिटी की पैंटासिड और व्हाटएवर गोली मुंह में डाली, एंड अब हम ठीक है. सो आप बताइए कि किस हद तक ये जो प्रैक्टिस चली आ रही है सबकी, एवरी सेकंड पर्सन इज डूइंग दिस, कि मेरे को एसिडिटी की गोली खानी है सुबह खाली पेट. सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ एप्ट इज इट, कितना राइट है ये पॉपिंग ऑफ पिल करना, और यू शुड चेंज योर लाइफस्टाइल और व्हाट? डेफिनेटली यस. सी रूपा, ये जो गर्ड, ये जो एसिडिटी या फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम है, ये कोई गरीबों की प्रॉब्लम नहीं है. आई हैव नेवर सीन अ लेबरर वॉकिंग इनटू माय ओपीडी सेइंग. तो व्हाट आई मीन इज, स्ट्रेटा का डेफिनेशन इट्स अ रिलेशन है. लो सोशल स्टेटस, यस, नेवर हैव इश्यूज रिलेटेड टू एसिडिटी और एनीथिंग. तो जब बात करें अमीरों की, तो आई चोज दिस फील्ड बिकॉज anyone wanted to be successful, anyone wanted to be successful, I need to have a patient. तो मुझे मालूम था कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि which could make me settle in Dehradun rather than at Badrinath. So I chose Dehradun. The reason was कि GI related ये कॉमन प्रॉब्लम है, और कॉमन प्रॉब्लम जब होती है तो उसका अपनी हमारी लाइफस्टाइल से डेफिनेटली रिलेशन होता है. It is the stress also. I tell you, मैं normally अपने पेशेंट से, जो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट रहा है, I usually say there are 4 S, 4 S बोलता हूँ, जो गैस्ट्राइटिस या इस प्रॉब्लम से मेन है. The first is the spice मतलब मिर्च मसाला. ज्यादा खाओगे तो ज्यादा परेशान रहोगे. Second is the spirit, alcohol. बिल्कुल. Any form of alcohol, whether it is a mocktail or a cocktail, any form will give you this problem. Third is the smoking part. Anyone smoking would give you this acidity problem. And the commonest, I tell you, that I see nowadays in my OPD, Rupa, is a stress. Stress का भी directly proportional role हमारे, yes. तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो ब्रॉडली आपने भी बोला कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहता है कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए, जिसमें आपका, इट इज नॉट सिर्फ खाना इंक्लूडेड है, उसमें आपका स्लीप पैटर्न इंक्लूडेड है, उसमें आपका रहन सहन इंक्लूडेड है, और उसमें आपका मतलब एक अच्छी विदाउट स्ट्रेस लाइफ जीना भी इम्पोर्टेंट है. तो अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि यू नेवर हैव फ्लैटुलेंस, यू नेवर हैव गैस की प्रॉब्लम, आपको कभी ब्लोटिंग ना हो, तो कॉमनली आपको ब्रॉडली, जो मैंने कहा, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा. अब पहली चीज जो स्पाइस है खाने में, वी सेड कि आप अपना खाइए. व्हाट फूड यू वुड आस्क मी, तो नॉर्मल फूड आप खाइए मेरी ओर से, जिसमें मिर्च मसाले कम हो, हाई फाइबर डाइट हो. ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि द मोर फ्रूट्स शुड बी इन आवर डाइट. यस, फ्रूट्स होने चाहिए किसी भी फॉर्म के. कोई अब उसको सब कैटेगराइज कर दिया, लेकिन कि एल्कली फूड होने चाहिए, एसिडिक फूड. मेरी ओर से एनी फ्रूट यू गिव इट टू एनीवन इज ऑलवेज अ हेल्दी थिंग. तो निकालना क्या है, जोड़ना है कि अपनी, आई टेल यू, आई हैव बीन, मेरी पढ़ाई एक बोर्डिंग में हुई है, और इट वाज मैंडेटरी हमारे बोर्डिंग में कि हम फ्रूट्स डेली खाएं और दूध सुबह पिए, और टाइम पे हम उठते जल्दी थे, और वी यूज्ड टू गेट अप एट 6 एंड वी यूज्ड टू गो टू बेड बाय 9. तो एक पैटर्न, जो स्लीप पैटर्न या आपका लाइफ साइकिल का पैटर्न है, अगर आप उस पैटर्न को ठीक रखेंगे तो आपको, आई कैन अश्योर यू, मेजॉरिटी, एज आई सेड, कि एसिडिटी अपेंडिक्स फटने पे भी हो सकती है, ब्लोटिंग कुछ कारण से भी हो सकती है, लेकिन it is not that out of 100 would have that. Out of 100, 10 would have some surgical, connection to it, but majority would definitely benefit with the lifestyle change. Yeah. So, and what about popping a pill early in the morning? What do you have to say about that? कुछ नहीं मिला तो easy method. As I said,
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये सी दिस इज ऑल स्ट्रेस। मैंने कहा ना, डी स्ट्रेस का एक चीज है। आप मानिएगा, पूजा मैं भी करता हूँ सुबह उठ के, और जब पूजा करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा दिन अच्छा जाएगा। सो दीज आर, अब लोगों ने उस एसोसिएटेड अपने दिमाग में बैठा लिया है। तो बिल्कुल। पॉपिंग अप पिल एवरीडे इज नेवर गुड, कभी भी अच्छा नहीं है। क्योंकि सी, हमें हमारा स्टमक का काम एसिड प्रोड्यूस करना है। उस हाँ एसिड जी। में बहुत सारे अच्छे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को डाइजेशन का काम करते हैं। और कुछ कुछ बिल्कुल। लोग ऐसे हैं जो सालों साल से वो जो काम है स्टमक का वो खत्म करवा चुके हैं, कि वो जो एसिड प्रोडक्शन का काम था वो अब इतना ज्यादा न्यूट्रलाइज्ड हो गया है कि वो एंजाइम खाना पचाने के लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते। उसकी वजह से ज्यादा, और स्लोली एंड स्टडीली दे आर द पीपल हु हैव मोर ट्रबल इन द फ्यूचर लाइफ रादर देन। सो इट इज नेवर सी, मैंने मुझसे भी कहता है कि वी आर इंडियंस एंड वी हैव एसोसिएटेड योग और पथीज विद अस। तो मैं कहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं सर सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीता हूँ, उससे मुझे आराम मिलता है। तो आई सेड, उसमें उसमें एबनॉर्मल क्या है? आप करो ये चीज है। क्यों? बहुत क्योंकि हम अच्छा। दिन भर में पानी नहीं पी पाते। तो अगर कुछ अच्छी हैबिट्स हैं तो उसको छोड़ के आपको अच्छा लगता है, आप अच्छे, आई डू गेट गिव फ्यू गुड रिस्पॉन्स ऑल्सो वेयर आई नो इट। आई एम एलोपैथी, सी एलोपैथी इज ऑलवेज फॉर एन इमरजेंसी। मानिएगा आप कि हाँ एलोपैथी जी। जो we are giving it, Dr. Vipul is giving it, is an allopathy medicine. Allopathy is बिल्कुल। always for an emergency. It is not अगर कोई मैं आज हाँ भी जी। रुपा आई टेल यू, कोई मेरे से कहता है सर मुझे मुझे ये करके आराम मिलता है, तो मैंने कहा तुम वही करो, उसमें तुम दवाई एड ऑन मत करो। तो लेकिन जो बिल्कुल। आपका क्वेश्चन था कि पॉपिंग अप अ पिल एवरी डे इन द मॉर्निंग इज नेवर नेवर नेवर, नो गुड डॉक्टर वुड से दैट। और रादर आप अपने खाने की हैबिट को और ज्यादा नुकसान करेंगे रादर देन कोई फायदे बिल्कुल। के। So सो do not take medicine across the table. If had been advised by you by your doctor, physician, then do take it. yeah. So what C4S, what Dr. Sab has told us, and our lifestyle, we really should change that to become healthier. जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं मोस्टली, व्हाट डॉक्टर विपुल इज टेलिंग अस. So Dr. Sab, one very important question what is coming in my mind is, what is the difference between heartburn and acid reflux? We really listen a lot about acid reflux के हमें बहुत एसिड ऊपर की ओर आ रहा है, कुछ खाना ऊपर की ओर आ रहा है, एंड देन हमारे को बहुत जलन फील हो रही है, एंड स्पेशली आफ्टर अ मील व्हेन वी गो आउट. हम जब भी कोई भी डिनर बाहर करके आते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये 2 कंप्लेंट्स बड़ी कॉमन रहती हैं. सो इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रूपा, गर्ड जो रिफ्लक्स डिजीज आप बोल रहे हो, नॉर्मल है कि वंस हमारा हमारा सिस्टम है कि हमारा वी हैव अ माउथ वी स्वॉलो, उसके बाद खाना फूड पाइप पे जाता है, और फूड पाइप के बाद इट रीचेज द स्टमक। जब एक बार खाना स्टमक में चला गया तो फूड पाइप के लोअर और स्टमक के जंक्शन पे कुछ स्फिंक्टर्स होते हैं जो वन वे ट्रैफिक करते हैं कि खाना मुंह से पेट में तो जाएगा, लेकिन पेट में एक बार जाएगा तो वापस नहीं आएगा। हाँ जी. तो अगर अगर वो वापस ना आया तो दो स्फिंक्टर्स एक्ट एज अ जैसे बोलेंगे डोर होगा कि एक और खुलेगा, वैसे ही खाने को आने तो देंगे लेकिन वापस नहीं जाने देंगे। तो ठीक है. गर्ड में क्या होता है, बिकॉज ऑफ व्हेन द प्रेशर ऑफ दोज स्फिंक्टर्स आर नॉट मेंटेन्ड एट अ सर्टेन टाइम, या जो आपने कहा कि हम हैवी मील ले ली रात की और खाते ही हम बिस्तर पे लेट गए, तो वो डिपेंडेंसी क्या होता है, वंस वी लाई तो वो खाना जो स्टमक वाला होता है दैट कम्स बैक टू द फूड पाइप। अब फर्क क्या हो गया होता है कि जो खाना पेट के अंदर जाता है उसमें इतने ज्यादा स्टमक के सिक्रीशन जो एसिड रिच होते हैं वो मिल गए होते हैं कि वंस इट स्टार्ट कमिंग बैक तो वो फूड पाइप की इनर लाइनिंग को ना एसिड जलाने लगता है। तो वो सेंसेशन जो एसिड के जलने की फूड पाइप के अंदर की होती है, इमेजिन करो वो उतनी होती है कि जितने में अगर कोई फ्राई कर रहा हो उसका तेल का एक ड्रॉप उसके हाथ पे पड़ जाए। ओके. So the same feeling that GERD or the heartburns gives. Yes. So this is broadly कोई heartburn बोले या reflux बोले तो ये चीज होती है कि imagine कि just think for a minute कि कोई भी जो भी सुन रहा होगा उसने कभी ना कभी उसके एक ड्रॉप गरम गरम कढ़ाई के तेल की उसके हाथ पे पड़ी होगी, तो वो जो फीलिंग रहती है that feeling is the same feeling that the GERD or the reflux
Yes. काउंटर। तो पहले तो ये हमें ये डिसाइड करना whether this is again it is a temporary thing or it is a permanent thing। तो अगर कोई GERD लेके आता है तब कोई हम एक एज क्राइटेरिया लेते हैं। if anyone who is quite young, we avoid any intervention। लेकिन हम क्या होता है कि हमें लगता तो है प्रोबेबल ये GERD है, रिफ्लक्स है, लेकिन हम वी मेक श्योर कि हम उसकी एक एंडोस्कोपी कराते हैं। हम उसमें और कारण ढूंढते हैं। आई टेल यू, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है विच इज वेरी कॉमन। एच पाइलोरी एसोसिएटेड हमारे इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा पेप्टिक अल्सर्स जो हम बोलते हैं। तो टेम्परेरी कारण जो आप पूछोगे मेरे से, तो टेम्परेरी कारण जो ये हार्ट बर्न्स और रिफ्लक्स के होते हैं उसमें कॉमनली पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, और उसमें एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है। तो वो हम टेस्ट करते हैं, और टेम्परेरी में क्या होता है कि उस रिफ्लक्स के लिए हम वो एच पाइलोरी की एक किट होती है वो खिलाते हैं, एंड विद इट द नॉर्मली इट गोज ऑफ। और अगर वो एसोसिएटेड क्या होता है, अब मैं साइंटिफिक टर्म में थोड़ी बात करूंगा। एसोसिएटेड कभी कभी कुछ हाइटस हर्निया मतलब कि जो मैंने बताया जंक्शन होता है फूड पाइप का और स्टमक के साथ, वो कभी वेरी करता है। स्टमक देन स्टार्ट कमिंग टुवर्ड द चेस्ट, तो वो हाइटस हर्निया होता है। तो वो कैटेगराइज करते हैं, पहले हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। वी इन्वेस्टिगेट इट, वी मेक श्योर दैट व्हाट वी आर फीलिंग। अब आई टेल यू दैट इसके गैस्ट्रो के साथ साथ द कार्डियो कॉज, वी मेक श्योर दैट वी फर्स्ट इवेल्युएट इट। आप समझिएगा, कोई भी आया मेरे पास, उसने कहा मुझे हार्ट बर्न हो रहा है स्पेशली एट द रेट्रोस्टर्नल, दिस इज द रेट्रोस्टर्नल पार्ट। तो वी से इट कि अगर रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट है, उसका ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो उसमें हम ये एलिमेंट रूल आउट करते हैं कि दिस हार्ट बर्न, दिस रिफ्लक्स इज नॉट रिलेटेड टू कार्डियक इवेंट, इज इट रिलेटेड टू। तो ये घर पे बता पाना इज समटाइम डिफिकल्ट। लेकिन क्या होता है कि व्हाट आवर प्रोग्राम वी आर सिटिंग हियर इज टू डिसाइड कि भाई कौन से फैक्टर है कि मुझे तुरंत जाना चाहिए। तो एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 40 और 50, और एनीवन जो बीपी से ग्रसित पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई भी पेन ऐसा रिलेटेड है कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है और मेरा हार्ट बर्न भी हो रहा है, तो ऐसे का हम ईसीजी कराते हैं, कुछ ट्रॉपा है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कराते हैं। वी मेक श्योर कि इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इट इज अ टेम्परेरी कंडीशन। सो दैट आई टेल यू कि ये मैं फोन पे भी किसी को नहीं बता सकता ऐसी चीजें, ये जब तक पेशेंट सामने ना हो। तो एनी हार्ट बर्न और रिफ्लक्स related to any elderly above the age of 50 with associated comorbidity, जिसको हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, तो उसमें थोड़ा सा वी just need to be apprehensive rather than sitting back at home कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं होगा। तो they are the people, उसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसे केसेस में आपने सही कहा कि मेरे पास सिर्फ गैस्ट्रो के केस के लिए इमरजेंसी में 11 बजे आया है और 12 बजे तक पता चलता है कि हमें उसे कार्डियक यूनिट में शिफ्ट करना पड़ता है। yes. तो वो गोल्डन आवर्स जो हमारे पास भी कुछ करने के होते हैं, वो गोल्डन आवर्स भी नॉर्मली एनीवन इफ यू ट्रीट इन गोल्डन आवर्स इज ऑलवेज अ गुड थिंग वेयर वी डील विद सेविंग द लाइफ ऑफ पेशेंट। तो जब सेव लाइफ की बात होती है तो वो थोड़ा सा एप्रीहेंसिव रहे। मेक श्योर अगर ऐसा कुछ है तो immediately consult the doctor immediately. We should not take a chance we should not take any chance। जब आप हाइपरटेंशन है, जब आपको हार्ट इशू है, so it is better to consult a doctor। एक क्वेश्चन आ रहा था, I have headache issues because of gas and acidity mostly and it's gone after I take Eno, but is there any permanent solution to it? As I said कि ये जो क्वेश्चन आया है हेडेक इशू बिकॉज ऑफ गैस, तो ये आपने देखा ये भाई साहब जो है इनको थोड़ा सा मतलब क्या है, स्ट्रेस इज द बिगेस्ट फैक्टर। क्या होता है कि स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन जो होती है हमारी, व्हेनेवर यू आर अंडर स्ट्रेस, कोई भी चीज होगी रिलेटेड टू हेडेक, क्या होता है उससे नर्वस सिस्टम स्टमक का बढ़ जाता है। वंस द एसिड प्रोडक्शन गोज अप, यू टेक एन इनो, तो इनो इज एन एंटासिड, टेकिंग इनो इज नेवर एन, मतलब वो कोई दवाई नहीं है मैं कहूँगा अगर आपको ऐसा करके। लेकिन मेक श्योर कि इस सरदर्द का कोई और कारण ना हो। मतलब ग्रैनुलोमा है यंग में, तो हमें ये देखना है रूपा कि ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि किसी को सरदर्द होगा उसको गैस की प्रॉब्लम होगी। आई टेल यू
अब कोई आया, मैं रात को किसी दिन लेट सर्जरी करके आया, 2 बजे सोआ और सुबह 6 बजे हो उठा, तो मानिएगा आपकी मेरे सर दर्द भी होता है और मेरे गैस के भी इश्यू होते हैं, क्योंकि स्लीप पूरी नहीं होती। वो तो उसमें है कि दोनों चीज होंगी। अगर आपकी नींद स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो उसको आपको गैस की भी प्रॉब्लम होगी और सर दर्द भी होगा। तो मेक श्योर यू टेक रेस्ट रादर देन थिंकिंग कि मुझे कोई ऐसा एसोसिएटेड है, कुछ नहीं है। ये बता रहा है कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। गिव इट दैट मच ऑफ रेस्ट, इट इज नॉट अ मशीन। गिव रेस्ट टू योर बॉडी एंड यू विल बी फाइन। So sleep rest is also important, and I think जो खाने का एक timing है, Dr. Vipul, that is also very important. We should schedule our food, and the timing of food is also very important for the food to get digested properly. That is also one time, क्योंकि अगर हम बहुत late meals लेते हैं तो उनको digestion में भी उतना ही time लगता है, and then mornings are not that comfortable. श्योर वी यूजुअली ऐसे पेशेंट को जिनको ये होता है, रादर देन रूपा यू आर आल्सो न्यूट्रिशनिस्ट, यू ऑलवेज एडवाइज इट इज एब्सोल्युटली गुड फॉर एवरीवन कि सब जने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी नेवर फॉलो इट। आप मानिएगा कि हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें रादर देन सिटिंग एट वन टाइम हॉगिंग लाइक एनीथिंग, जो अनफॉर्चुनेटली वी एंड अप विद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। मेरे स्कूल टाइम पे मैं आपको फिर बोर्डिंग का शेड्यूल बताऊं कि हमारा 8 बजे ब्रेकफास्ट होता था, 12:30 बजे लंच होता था, उसके बाद 3 o'clock वी यूज्ड टू हैव टी, 6:30 वी यूज्ड टू हैव डिनर एंड 9 बजे हमारा दूध होता था। तो द डे वाज डिवाइडेड टू 5 मील, 5 शेड्यूल। अगर इंसान वही शेड्यूल करे जो आपने कहा कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, lunch should be like a prince, and dinner should be like a beggar. These are the things that had been said n number of times before in many ways. तो डिनर को लाइट रखिए। मैं कहता हूँ अपने पेशेंट से, क्या होता है ना कि हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास लोग, आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, लाइफ में प्रोटीन्स की आवश्यकता ज्यादा है, फैट और कार्बोहाइड्रेट की कम है। यू वुड एग्री। लेकिन हम क्या होता है रोटी और चावल पे ज्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि वो हमारी सैटिस्फाई फील करता है, हमें फुलनेस की चीज देता है ना। जैसे होता है सैटिस्फाई होती है, फुलनेस होती है कि आपने रोटी खा ली, हाँ जी 2 रोटी खा ली, पेट भरा हुआ लग रहा है। तो मेरे पेशेंट बहुत कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कहते हो कि 7 बजे डिनर कर ले तो हम भूखे रह जाएंगे। तो आई यूजुअली टेल देम दैट इफ यू हैबिट ऑफ स्टार्ट ड्रिंकिंग मिल्क, यू आर टेकिंग एट द सेम टाइम, आपने प्रोटीन भी ले लिया। अगर आप रात को सोते समय हैबिट है तो 1 गिलास दूध ले लो, आधा गिलास दूध ले लो, तो वो आपकी एक फुलनेस भी दे देगा और अच्छा काम भी कर देगा। So this is how, but main concept should be that small frequent meals which rich in proteins and less of carbohydrate and fat should always be included. Yes, and as I said, include everything. सब चीज खाइए, कुछ ऐसा नहीं है once a while मैं भी लेता हूँ। I tell you that मेरा mix everything together rather than बिल्कुल। नॉर्मली मैं तो ये कहती हूँ कि जो हमारा मौसम का फल है या सब्जी है वो खाइए, टाइमली खा लीजिए, एंड फर्स्ट कुक खाइए। दिस इज द मेन थंब रूल ऑफ अ हेल्दी फूड एंड लाइफ। टाइमली खा लीजिए और मील अपना पोषण कंट्रोल करिए और ताजा खाइए, दैट इज मौसम का खाइए। हम ऐसा है ना कि हम इस मौसम में पालक खाएंगे या जो चीजें अभी नहीं रिक्वायर्ड है वो खाएंगे तो वी विल एंड अप हैविंग ऑल द स्टमक इश्यूज, हमारे गट इश्यूज इससे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल अग्री रूपा। कभी भी इट इज ऑलवेज सेड कि फ्रेश इज ऑलवेज बेटर देन एनीथिंग दैट हैज बीन केप्ट इन फ्रीजर। तो आप फ्रेश खाइए ना, जब आपको कोई चीज फ्रेश मिल रही है, और तो व्हाई यू रन आफ्टर समथिंग व्हिच हैड बीन केप्ट इन फ्रीजर फॉर लॉन्ग। तो ऑलवेज एनी फ्रेश बिल्कुल। एक्चुअली क्या हो गया कि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम लोग वी ट्राई कि हम सुबह बना के फ्रिज में रख देंगे और शाम को उसको रीहीट करेंगे, फिर करेंगे जस्ट टू सेव टाइम। बट आई थिंक सेविंग टाइम एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ इज नेवर अ ग्रेट थिंग। चाहे थोड़ा टाइम लगा के कर लो, बट फ्रेश खाओ तो इट इज ऑलवेज हेल्पफुल। सो बिल्कुल, कमिंग अप टू ब्लोटिंग, आपके पास भी कई लोग आते होंगे, सर हम सुबह उठते हैं हमारा पेट आगे तक हुआ होता है, या जब तक द होल डे पासेस तो इवनिंग में, लेट इवनिंग में स्पेशली विमेन हैव दिस इशू कि हमारा पेट फूल जाता है। सो ये व्हाट इज ब्लोटिंग एंड क्यों होती है ये ब्लोटिंग?
पहले तो ये बताइए. I think every ब्लोटिंग का, woman, every हाँ, girl has this. ब्लोटिंग का मत, यस 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 यस, ब्लोटिंग नॉर्मली क्या है कि हमारी इतनी बड़ी इंटेस्टाइन है हमारे बॉडी में जो आते हैं, आतो या तो कोलैप्स आंतों के अंदर एयर या वाटर कंटेंट होता है जो फूड के थ्रू गया होता है. अब ये एयर और वाटर कंटेंट जो लास्ट, इट इज अ पाइप, फूड पाइप जो भी है, मैंने ये इंटेस्टाइन भी एक पाइप है विच नॉर्मली रिमेन्स कोलैप्स बिकॉज यू हैव अ नॉर्मल रूटीन में यू हैव अ मोशन इन द मॉर्निंग. तो नॉर्मल ब्लोटिंग मैं उनको देखता हूँ जो नेवर हैव अ शेड्यूल्ड लाइफ. तो उनकी नॉर्मल प्रॉब्लम मेरे से ब्लोटिंग क्या रहती है, डॉक्टर साहब वी नेवर हैव एन सेंस ऑफ कंप्लीट इवैक्यूएशन. मतलब डॉक्टर साहब एक बार में पेट साफ नहीं होता. तो ये एक बार में पेट साफ नहीं होता मतलब कि they have that urge, but unfortunately they are never able to evacuate that bowel. They never have a good bowel habit, I would say. तो उसकी जो मेन रीजन है रूपा, मुझे ब्लोटिंग का मेन रीजन फाइबर से रिलेटेड रखता है कि वो चीज हमारी डाइट से वो चीज जा रही है. और उसका मेन कारण हो गया है कि डेफिनेटली द जंक फूड. मैं देहरादून जब से आया हूँ, आई टेल यू फ्रैंकली कि मैं अपने कितने शोज में बोल चुका हूँ कि इतने तो मैंने तिब्बत में लोगों को मोमोज और चाउमीन खाते हुए नहीं देखा जितना मैंने देहरादून के स्ट्रीट फूड में मोमोज और चाउमीन देखे हैं. You're right. तो समझना कि मैं अपने दादा के साथ व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं जब बाजारों में जाता था पहले, तो शाम को हम लोग रबड़ी खाते थे, दादा रबड़ी खिलाते थे या कुछ अच्छी चीज खिलाते थे. अब क्या हो गया कि हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो बेटा कहता है या तो KFC का बर्गर खाना है, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना है, फ्राइज खाने हैं, या आप नॉर्मली देखोगे जो मैं देहरादून में बड़ा कंसर्न हूँ वो मोमोज और चाउमीन, दीज टाइप्स ऑफ फूड्स विच हैज टेकन अप मेनी ऑफ द थिंग्स. और इसमें क्या क्या मिलता है, मैंने सुना है कि अजीनोमोटो टाइप की बहुत चीजें हैं. तो वो ये क्या करते हैं, ये हमारे जो GI ट्रैक्ट का फ्लोरा होता है, मतलब भी सांप की कैंचू की तरह है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कि एक दबता है तो एक खुलता है, फिर एक दबता है तो दूसरा खुलता है. तो उसके अंदर फ्लोराज होता है, GI फ्लोराज. तो उस GI फ्लोराज को ये सारे फूड टाइप के खत्म कर देते हैं. सो वंस दैट गेट्स वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खत्म होता है तो वो मूवमेंट इन तो फ्लैसिड हो जाती है वो तो उस फुलनेस को आप जो बोल रही हो कि आंतें फूली फूली सी, पेट फूला फूला सा, दैट इज टर्म इज कॉल्ड एज ब्लोटिंग. तो उसका जो मैंने बताया अगेन, द टॉपिक जो हम ले रहे हैं इट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू आवर फूड हैबिट. और मेन कारण उस ब्लोटिंग और फुलनेस का है कि हमारी डाइट में बहुत ये चीज़ें आ गई हैं जो जंक फूड है, जिनकी वजह से सब ब्लोटिंग्स काफ़ी इसका मेन कारण यही है. तो अगर आपको ब्लोटिंग, अगेन यू हैव टू रिड्यूस दिस ब्लोटिंग, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि घर पे हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम द फूड हैज़ टू बी कुक्ड. घर का खाना खाइए, बाहर का एज मच एज यू कैन अवॉइड इट. मैं भी कहता हूँ बहुत लोगों से कि इट इज़ मी हु डिसाइड कि मैं अगर बाहर जाता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं चूज करूँ मेरा खाना बाहर के खाने में भी कि भाई द क्वालिटी ऑफ फूड शुड बी गुड. इट इज नॉट अबाउट हेल्दी, इट इज द प्लेस ऑल्सो. आप समझिए ना कि मैं एक कहीं नाला बह रहा है उसके ऊपर कोई मोमो बेच रहा खा रहे हैं, तो दैट समझिएगा कि इट इज ऑल द एटमॉस्फेयर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो वो हैबिट तो बदलनी पड़ेगी. अगर हम हैबिट अपनी नहीं बदलेंगे तो वो ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि डॉक्टर विपुल खंडवाल मोमो नहीं खाते, कभी कभार ठीक है, इट इज ऑलवेज फाइन, बट आई मेक श्योर कि यार अच्छी जगह का अगर अच्छा सा कुक्ड हो तो इट इज ऑलवेज बेटर रादर देन मैं ये नहीं कि रोज खाता हूँ. तो लेकिन हमारी जो डेली हैबिट हो गई, मुझे क्या कि जैसे जो मैंने कहा आपसे कि पहले लोग जाते थे हलवाइयों के पास जाते कुछ अच्छा खाते थे, वैसे अब हमारे मेजोरिटी ऑफ द जो स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनकी आदत है कि हाँ भाई रोज के जब तक 2 प्लेट मोमो या 1 प्लेट मोमो नहीं खा लिया, नूडल्स नहीं खा लिया, वो चाउमीन जो हमारी वो प्रॉब्लम जो है दैट बिल्कुल. And so that Rupa, that is the main concern for it, I think so. Yeah, I think जितने हमारे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या कैंसर भी जो बढ़ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस बैड ईटिंग हैबिट्स. और जो हम बाकी तो देखिए जो होना है वो तो किसी को भी हो सकता है, बट जो मेन लाइफस्टाइल इशू है और जो हमारी गलत खाने की हैबिट है, एज यू सेड, चाहे मोमोज खा लें, चाहे हम वो सड़क के किनारे खड़े तो चाउमीन खा लें या बन टिक्की खा लें, कुछ भी ऐसा खाते हैं, तो हमारे को वी आर लीडिंग टुवर्ड्स स्टमक कैंसर्स आल्सो. आई थिंक दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर स्टमक कैंसर.
Yes, yes, definitely. अजीनोमोटो मैंने कहा कि जापानीज दे ऑलवेज हैव दैट, वहाँ पे जो स्मोकी आया था जापान, जापानीज एंड चाइनीज पीपल हैव लॉट ऑफ कैंसर स्टमक। तो वहाँ पे जो रिसर्च करी उसमें पाया गया कि यस, इट इज नॉट, मतलब है, इटियोलॉजी फैक्टर्स आर लॉट। इटियोलॉजिकल में एक मतलब एपिडेमियोलॉजी भी एक वो है कि किस एरिया में हाँ जी। स्पेस में है। लेकिन हाँ, फूड फूड का is one of the can is one of the etiological factor for any type of a cancer, any type of cancer. भाई जैसे हम बोलते हैं कि स्मोकिंग डेफिनेटली कैन लीड टू अ लंग कैंसर, ऐसा नहीं कि हर स्मोकर को या नॉन स्मोकर को भी होगा, लेकिन यस, इट इज वन ऑफ द फैक्टर कि It जिसमें is more कैंसर prone. खाने का, स्टमक Yeah. का या इंटेस्ट, इट इज इट हाँ, yeah, they would be ड्रिंकिंग हो more गया, prone to develop it rather than यस, any स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग अल्कोहल, any any these any things, any any abnormal lifestyle. Yes, yeah. So these things yes, actually, and then we would have start would have blaming. yes, they would have impact. और एक्चुअली बिल्कुल प्रॉब्लम है कि वी स्टार्ट ब्लेमिंग, बहुत जल्दी ब्लेम कर लेते हैं कि इस डॉक्टर के पास गए थे, इन्होंने बताया, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो चेंज द डॉक्टर। द डॉक्टर कितना, डॉक्टर इज नॉट गॉड, ही कैन जस्ट गाइड यू आगे। तो लाइफस्टाइल को आपको ही ठीक करना है अपना, दैट इज द मेन थिंग। True. सो विपुल, हमारे जो गट इश्यूज होते हैं उसको हमारा गुड फूड एंड लाइफस्टाइल ठीक करता है। हम जैसे बात कर रहे हैं कि हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए या हेल्दी फूड ऑप्शंस ढूंढने चाहिए, एंड वी शुड ट्राई। सो डू प्रोबायोटिक्स आल्सो हेल्प विद गट इश्यूज? बिकॉज एज वी नो प्रोबायोटिक्स हेल्प फॉर दी, Yes, वो yes. हमारे गुड बैक्टीरिया को बिल्कुल। मल्टीप्लाई अभी करने अभी में हेल्प अभी करते अभी हैं। रूपा, यस, जो जो मैं गट फ्लोरा की बात कर रहा था, जो अंदर होते हैं, तो वो फ्लोरा को रिप्लेनिश करने के लिए, वो फ्लोरा क्या होते हैं, वो जाते हैं और नए बनते हैं। मैं आपको बता रहा था ना कि अभी जो ब्लोटिंग आप बोल रहे थे कि फैबिनेस रहती है, तो वो फ्लोरा को, और जैसे कहते हैं ना, हम कोई चीज बोते हैं तो उसके ऊपर अच्छी खाद डालते हैं, गोबर खाद हाँ खाद जी, डालते हैं ताकि वो अच्छा उगे। वैसी उसकी जो फ्लोरा, जो गट की होती है, उसको उगाने के लिए, उसके लिए अच्छी खाद इज इन द फॉर्म ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक। तो वो उस फ्लोरा को रिप्लेनिश करती है। तो हाँ रिप्लेनिश जी, होती है तो फ्लोरा जल्दी अच्छे अच्छे रहते हैं। और अगर वो अच्छे रहते हैं तो बाउल का पेरिस्टाल्सिस अच्छा रहता है, बाउल का मूवमेंट ठीक रहता है, तो आदमी को ब्लोटिंग और फुलनेस की फीलिंग ये सब कम रहती है। तो प्री प्रोबायोटिक डेफिनेटली, दही एक बहुत अच्छा प्री प्रोबायोटिक है। रूपा, यू वुड बी नोइंग बेटर देन मी कि मैं तो अपने पेशेंटों से कहता हूँ कि दही खाओ, ताजा दही खाओ। ताज़ा दही, और उसमें बटर किशमिश मिल्क डाल इज के एन भिगो एक्सीलेंट दीजिए। फॉर्म। मैं तो नॉर्मली कहती बिल्कुल। हूँ कि तो दही के अंदर आप किशमिश मतलब ये जमा चीज है। दीजिए। बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि पंजाब आप जाओगे ना, वहाँ मिल्क से ज्यादा दही, कर्ड, आई ऑलवेज से इट कि इट इज ऑलवेज इन अ बेटर फॉर्म। यस, कि आप दही लिए, दही और मट्ठे से बढ़िया कोई गट प्री प्रोबायोटिक कुछ है ही नहीं। अब बाकी तो खैर मेडिकली तो एलोपैथिक में हम बहुत प्री प्रोबायोटिक यूज करते हैं। दैट इज वो जो इंटेस्टाइन के अंदर का जो फ्लोरा है, वो हाँ उसकी जी, खाद है प्री प्रोबायोटिक। अगर वो उसको मिलेगी प्रोबायोटिक। तो वो अच्छी तरह काम करेगा। उसको उसको अपना दे गेट देयर फूड, so the flora would be better, and if the flora is better, the bowel movement and the GI symptoms would be better. सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी So एक अच्छे what other लाइफस्टाइल than से। Rupa, don't mind it. Other than this, what all things do you recommend on a for as a pre-probiotic? मैंने दही तो बोला, anything that other than this you recommend? You आई can बेग योर guide me पार्टनर, so आई that डिडंट I हियर can यू। tell my patient. हाँ जी, मैंने कहा हम जैसे दही और बटर मिल्क के लिए कहते हैं कि हाँ दे जी। एक्ट एज अ गुड, तो कोई और खाना जो आप सोचते हो कि वुड बी अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर टेकिंग मेडिकल प्री प्रोबायोटिक? या वो आजकल किमची सैलेड बहुत अच्छा होता है, दैट इज वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ ऑल्सो। किमची आता है वो ओके। सैलेड बन के, वो खा सकते हैं। एंड हाँ, हाँ। मैंने अभी आपको जैसे आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि दही के अंदर किशमिश भिगोकर जमाई जाए तो प्री किशमिश, एंड प्रोबायोटिक दोनों मिलता है। अच्छा सो इट इज वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ अच्छा। ऑलवेज। आप अगर अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करेंगे तो आपको हाँ, हाँ। बहुत कम इश्यूज होंगे। बाकी छाछ आजकल खूब अच्छा, लंच के बाद सभी छाछ पीते हैं, so that is very good. बिल्कुल। So वो लेना is very important. So I come up to a very flatulence की common problem है। कई बारी हम बहुत ज्यादा गैस, हमारी
पास होती है, it becomes very embarrassing also. There are times when we are socially standing somewhere and but it is, this situation is not in our control. ये हमारे कंट्रोल की सिचुएशन नहीं होती. सो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. सो व्हाट इज द हल? क्या इसके सिम्टम्स तो हमें मालूम है कि भी कई बार हम बहुत फ्रीक्वेंटली वी फार्ट आल्सो एंड दैट, तो इसको किस तरीके से डील किया जा सकता है? एंड इज इट अनहेल्दी? नहीं, दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन कि क्या फार्टिंग अनहेल्दी है? नहीं, यस. क्या है रूपा कि आई वी हैड अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन इट कि नॉर्मली जिसका बाउल मूवमेंट्स रेगुलर नहीं होगा, हैबिट्स रेगुलर नहीं होंगी, उनको ये इश्यूज होंगे. तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ माय पेशेंट्स हुम आई सी इन माय रेगुलर ओपीडी कि इनकम्प्लीट बाउल हैबिट्स जिसकी रहेंगी, who always have that feeling of कि मुझे मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ बॉल, तो उनको ये फ्रिक्वेंस वाली प्रॉब्लम्स होती है. इनको हम हस इसबगोल जो है अगेन इट इज जस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द फाइबर. तो हम नॉर्मली कहते हैं अपने पेशेंट से आप इसबगोल की भुस्सी जो कॉमनली अवेलेबल है, इट इज ऑलवेज अगेन इट गिव्स अ गुड प्रोटेक्शन टू योर फ्लोरा, जो जीआई फ्लोरा है. तो ये प्रॉब्लम से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे हैव दिस प्रॉब्लम एंड आई टेल यू दे वुड फील बेटर इफ दे स्टार्ट टेकिंग दैट इसबगोल हस्क. तो अगर कोई रेगुलर ले इसबगोल हस्क, आई कैन अश्योर यू he would never have to go through this type of a problem. Yeah, this is helium husk जिसको कहा जाता है. और हाँ, yes, it is readily available. Very easily available. Yeah, जो भी फाइबर मतलब आपको आप yes. एक बात बताइए डॉक्टर साहब, इसको सही टाइम में खाने का कौन सा टाइम है? हस्क को हम लेते हैं, so is it before going to sleep, रात को after your food? हम लोग 2 बार रिकमेंड करते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट अ स्पून ऑफ इट एंड आफ्टर डिनर अ स्पून ऑफ इट. और बेड टाइम दैट क्या होता है ना, ये हैबिट पे आता है. किसी कभी भी मैंने आज तक नहीं देखा कि एक दिन लेने से ठीक हो जाए. तो हम कहते हैं कि बेड जो बोलते हैं कि भाई कि बेड टाइम क्यों ले लो, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप सोओगे तो आपको कुछ चीज यादें आएंगी. तो आप जब कोई चीज याद आएगी तो आपको ये भी याद रहेगा कि यार मैंने ये भी लेना है. तो इसीलिए बोला जाता है कि अब नहीं मालूम कि बेड टाइम इसलिए बोला जाता है कि भाई डिनर है, अब मैं आज डिनर पे हो सकता है कि मैं अपने घर पे ना हूँ, कहीं और हूँ, तो लेकिन बेड टाइम मेरा बेड मेरे घर पे ही है, मैं वहीं सोऊंगा. तो कुछ चीज जो बनी है, सो इट डज नॉट मैटर वी हैव टू बी. सो बेड टाइम इसलिए बोला है कि आप डिनर कहीं भी कर रहे हो, कुछ भी करके आओ, सो योर बेड इज वेटिंग फॉर यू. सो यू लगे कि इसको बेड टाइम ले लेना भाई, कि जाओगे उससे पहले तुम्हें याद रहेगा, खा लेना और यू विल फाइन. सो ट्वाइस वी यूजुअली रिकमेंड ट्वाइस अ डे. Once is after breakfast. और ये क्वेश्चन इवन अगर हमारी कोई माने ना माने, अगर मैं कह रहा हूँ अगर 2 माने ना माने, एक बार भी कर ले तो वी वुड बी हैप्पी विद इट. वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि 2 बार करना, अगर ना हो तो मत करना. मेरे अपने घर में एटलीस्ट आज रूपा के प्रोग्राम से आई थिंक सो दैट समवन वुड लर्न पिक अप समथिंग फ्रॉम हियर. तो एटलीस्ट चलो तो एक बार तो चालू कर देना. Anyone who had this feeling of incomplete evacuation. Yes, 5 लोग भी अगर विपुल इस सेशन से जिनको फायदा हो जाता है ना, so our work is done. I तो just feel this. If कोई भी एक बंदे की लाइफ चेंज होती है ना इससे, तो my job is done. So there's a question coming, विपुल, are mouth ulcers related to stomach disorders? Normally मुंह में छाले हो जाते हैं, तो is it related to our stomach? This is a very good question. Whenever I encounter a patient of mouth ulcer, yes, मैंने आपको अभी बोला था कि जब खाना पेट के अंदर जाता है और एसिड के साथ वापस आता है, तो मैंने बताया था ना कि वो जैसे एक कढ़ाई से एक तेल गरम हाथ पे पड़ जाए तो जल जाता है, वैसी वो जो एसिड आता है मुंह पे, तो वो टंग के की फ्लोरा को जला देता है. इमेजिन कि वही एसिड है, तो वो अल्सर माउथ पे भी होते हैं. यस, बहुत टाइम पे पेशेंट जिनको रिफ्लक्स डिजीज की प्रॉब्लम रहती है, उनको माउथ अल्सर्स एसोसिएटेड होते हैं. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई टेल यू. बट माउथ अल्सर्स का कॉमन कारण इज रिलेटेड टू योर डेंचर हैबिट, दांतों की दिक्कत. तो मेरे पास कोई माउथ अल्सर का पेशेंट आता है तो मैं जंप इन कर जाऊं कि इसको ये प्रॉब्लम जीआई से रिलेटेड है,
मैं उससे पहले उसका मुंह खुलवा के एग्जामिन ये करता हूँ कि कहीं आपके दांत में कोई कीड़े वीड़े या कैरीज वेरीज तो ऐसे नहीं जिसकी Okay. वजह से, या दांत का कुछ ऐसा शार्पनेस तो नहीं जो टंग को इरिटेट कर रहा हो हाँ जी. और अल्सर कर रहा हो। तो अगर पेरिफेरी में कुछ अल्सर्स होते हैं हमारी टंग के, तो वो पेरिफेरी अल्सर्स आर मोर रिलेटेड टू योर टीथ। लेकिन अगर सेंटर में अल्सर है तो दे आर मोर रिलेटेड टू योर रिफ्लक्स अल्सर, जो एसिड वापस आया उसने वो टंग के फ्लोरा को जला दिया, तो उससे वो अल्सर हाँ जी. होते हैं। यस, इट इज। So again, healthy lifestyle is important. Good food, clean eating, अच्छा खाना खाइए. रात का खाना, That is मतलब important. सी इट इज नॉट, मैंने देखा है कि नॉर्मली मैं भी हूँ कि रात का खाना शुड बी, यू नो, देयर शुड बी, आप अगर, मैं हूँ अगर जाता हूँ कहीं पार्टी वार्टी में भी, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बिल्कुल नहीं जाते, तो अगर मैंने स्नैक्स खा लिए तो आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट ईट एनीथिंग दैट इज हैवी। मतलब मानिएगा कि मैं भी नॉनवेज खाता हूँ, तो अगर मैंने स्नैक्स खा लिए तो उसके बाद ये नहीं कि मैं उसमें मटन रोगन जोश भी लूंगा, बटर चिकन भी लूंगा, वो खा लिया तो उसके बाद मैं पे कुल्फी फलूदा है। सो मेक श्योर दैट यू ईट टू एंजॉय। मैं भी, Yes. एज आई सेड, मुझे भी जलेबी कभी कभी खाना पसंद है, मैं खाता हूँ। तो सब चीज का अगर एक ही बार में सब चीज खा लोगे तो प्रॉब्लम वुड बी मोर। सो हम Problem सत्यवादी, बढ़ेगी. वी आर लिविंग, रूपा, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड वी आर लिविंग इन देहरादून। अगर वही अगेन हैड वी बीन लिविंग इन समवेयर इन पहाड़, यहाँ पे सब नहीं थी अलाउड, तो ठीक है। जब देहरादून रहते हैं तो बट इट शुड नॉट बी इन अ हैबिट। आप उसको ठीक रहे, बैलेंस ऑफ लाइफ इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। So there is a question coming. Reasons for continued burping, especially after dinner. Yes, What could be the reason? especially after dinner, because Yes. as I said again, especially after dinner is कि after dinner immediately most of the time क्या हमारी आदत हो गई है कि immediately we go to bed, और जैसे ही आप डिनर किया, खाना पेट में ही है, उस पेट से उस डिनर को आगे स्टमक के लिए, स्मॉल बाउल के लिए मूवमेंट के लिए टाइम लगता है। एंड वंस यू आर स्टैंडिंग स्टिल द फूड इज डाउन, एंड वंस यू लाई द फूड स्टार्ट्स कमिंग बैक टू योर अप, और वो रिफ्लक्स जो वाली जो प्रॉब्लम है, तो वो जो खाना पचता है तो उसमें एयर वाटर हर चीज मिक्स रहती है। तो वो बिल्कुल. जो बर्प, जो स्टमक में इतनी जगह नहीं, आपने हैवी खा लिया, तो वो जो एयर है दैट्स वो आती है। तो जो आपने कहा डिनर के बाद, मोस्टली वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन कि डिनर शुड बी लाइट। मैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट से ये कहता हूँ कि डिनर पे रोटी और राइस मत खाओ आप, मतलब चपाती और राइस अपना बंद करो। आप दाल लो, प्रोटीन्स लो, जो भी ले रहे हो, फ्रूट्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ, जो खाओ कोई मतलब नहीं, खा रहे हो तो उसके और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रखो। बिल्कुल. डू नॉट गो इमीडिएटली लाई ऑन बेड, हैव अ वॉक, स्ट्रोल अराउंड। अब मैं कहूँ 2 किलोमीटर हो गया, 2 मिनट, लेकिन एटलीस्ट आज ये आदत छोड़ो कि खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पे लेट गए, 5 मिनट की ब्रेक ले लो, थोड़ा स्ट्रोल अराउंड before Yes. you go to bed. If you follow it, so these burps do things will work. Yeah. So we should go for a walk at least 10 मिनट के घर में ही, वरांडे में ही वॉक कर लीजिए, एंड खाना सोने से 2 घंटे पहले खाइए, सो आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. एंड कीप योर डिनर लाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. विपुल, एक बात बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन ऑल दिस? जो हमारी ये प्रॉब्लम्स है, इनमें पानी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? प्लीज इस पे थोड़ी लाइट डालिए. Excellent. ड्रिंकिंग ऑफ वाटर. वाओ, रूपा, ह्यूमन बॉडी जो है उसमें ही पानी का बहुत बड़ा रोल है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप बिल्कुल. ऑफ मेजॉरिटी थिंग अराउंड अस इज वाटर, और पानी ना हो तो कभी प्यासा होके देखना, मतलब मैं आई थिंक सो कि दैट इज समथिंग। वाटर कंटेंट हैज टू बी एज मच एज पॉसिबल, नॉट ओनली फॉर जीआई प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं बहुत देखता हूँ आजकल जो है, एकदम समर दिन आई है, किडनी स्टोन्स की बहुत प्रॉब्लम है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज नॉट ओनली द बर्ब्स एंड एवरीथिंग। तो दोनों में वाटर का बहुत बड़ा रोल है। इस प्रॉब्लम में भी एडिक्वेट वाटर इंटेक हैड टू बी देयर फॉर एनीवन। लोग मेरे से कहते हैं हमें 3 लीटर पानी पीना चाहिए, मैं कहता हूँ अगेन इन योर प्रोग्राम, आप लिक्विड कंटेंट रखो। आप दूध पियो, उसमें भी पानी है, आप जूस पियो, उसमें भी पानी है, आप लस्सी पियो, उसमें भी पानी है, आप मट्ठा पियो, उसमें भी पानी है।
तो लिक्विड हम कहते हैं ओवर ऑफ लिक्विड कंटेंट, इट इज नॉट ओनली वाटर विच इज इंपॉर्टेंट, वाटर इज एवरीवेयर। तो आप कोई में से कहता है कि मैंने भाई 2 गिलास लस्सी पी, तो आपने 2 गिलास पानी मान लो उसको, तो लेकिन ऐसा कंटेंट बॉडी का आप जरूर लीजिए। बात हुई थी कि I think there is some network issue. We will get him back. थोड़ा सा कोई नेटवर्क इशू है. सो वाटर कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 ग्लास एन आवर पीजिए आप पानी, आपको आधी प्रॉब्लम आपकी स्टमक रिलेटेड जो इश्यूज है वो भी सॉल्व हो जाएंगे. सो वाटर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली इट इज रिकमेंडेड 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें पीने चाहिए. और इन केस कट्ठे इतने लीटर पानी नहीं पिया जाता या तो आप पूरे डे में 1 आवर हर घंटे 1 ग्लास पानी पीजिए, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी एक क्वेश्चन आया था, ऑप्शन फॉर डिनर अगर हमें रोटी और राइस नहीं खाना. सो बिफोर द डॉक्टर जॉइन्स अप अगेन, आई वुड रिकमेंड, बाकी वी विल आस्क द डॉक्टर, बट आप सैलेड ले लीजिए, सूप पीजिए, खूब सारी सब्जियां डाल के उबालिए एंड हैव दैट सूप. So that is very nutritious, light on your stomach, has fiber, have all the nutrients, and it will work for you. आप सूप एंड सैलेड लीजिए, एग्स ले सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं, ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन. सैलेड में आप वार्म सैलेड ले सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. सब सब्जियों को, जो आपकी ब्रोकली है, उनको सबको हल्का सा गार्लिक में सॉटे करिए एंड एड ऑन टू इट. So before Dr. Vipul joins us, actually what I have taken out from the whole session is that our lifestyle should be very good. We have to have a very very good lifestyle. हमारे खाने का पैटर्न अच्छा होना चाहिए. 3 टाइम हमारे जो मील्स हैं, हमारा डिनर इज द स्मॉलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट मील वी कैन हैव. एंड लंच हमारा अच्छा होना चाहिए, दाल रोटी सब्जी. दही लीजिए जरूर अपनी डाइट में, दही और फाइबर को जरूर ऐड कीजिए, प्रोबायोटिक है दही एंड फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गट हेल्थ. एंड ब्रेकफास्ट में प्रोटीन जरूर ऐड कीजिए बिकॉज इट गिव्स यू, हमारी मसल्स भी बनते हैं एंड गिव्स यू द एनर्जी फॉर द होल डे टू कैरी ऑन. सो दीज 3 थिंग्स जो मैंने डॉक्टर साहब के साथ सेशन में अभी वी हैव जस्ट, या आई थिंक डॉक्टर साहब इज बैक. या डॉक्टर विपुल, देयर वाज सम कनेक्टिविटी इशू. Yeah. So I just took over you for a while. So that just to, yeah. So what is the best time to drink water? And should we not drink water during our meals? This is a question coming. Dr. Saab, can you hear me? ये सही बताऊं, ये क्वेश्चंस जो है बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं. एंड आई टेल यू कि कोई भी हमारी बुक में इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन मैं भी सुनता हूँ कि खाने से पहले पीना चाहिए, खाने के बीच में पीना चाहिए, खाने के बाद में पीना चाहिए. दिस सेड कि खाना खाने के कुछ देर बाद पानी पीना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. दिस सेड, बट इसका कोई मतलब, हम जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि भाई कोविड वैक्सीन का क्या रोल है, तो उसमें कंट्रोल ट्रायल्स होती हैं रैंडमाइज्ड, जो एलोपैथी मतलब जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की आजकल बात करते हैं. तो दैट क्वेश्चन इज क्वाइट गुड. ये बोला जाता है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए. रीजन ये होता है कि खाना जब पेट में जाता है तो कुछ पार्ट खाने का जो एसेंशियली पेट एब्जॉर्ब करता है. तो यस, खाने के इमीडिएटली बाद मत पीजिए. कोई लोग, किसी की हैबिट होती है खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना, 1 घंटे बाद पानी पीना. सो आई वुड बी हैप्पी कि पानी, लेकिन पानी पीना चाहिए. मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पानी पीना चाहिए. पानी जरूर पीजिए. और बीच बीच में दिस इज अ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ना. हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि ऐसा बिल्कुल मत करो. तो इट इज पानी पीजिए और खाना भी खाइए. लेकिन यस, यू नो, अगर पीना चाहिए तो समर में इनटेक पानी का बढ़ जाना चाहिए और विंटर्स में कम हो जाता है नेचुरली. यू नो, गुड वे कि समर्स में इनटेक पानी ज्यादा पीना चाहिए. यू नो, यू शुड हैव गो. एक क्वेश्चन आया हुआ है डॉक्टर साहब, प्लीज सजेस्ट आफ्टर डिनर टाइम नॉक्टर्नल GI इशू. Means nocturnal GI issues, what related to your
suggest after dinner night time nocturnal. Yeah. Again, nocturnal, मेरे ख्याल से the question what Miss Mehra or Mehra wants to ask me is nocturnal GI issue is again कि after dinner मतलब कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका डिनर 11 बजे हो रहा है तो मेक श्योर यू डू नॉट हैव डिनर एट 11. आप डिनर ही मत करें. अगर 11 बजे डिनर है आप उस समय एक अपना जो भी है ग्लास ऑफ मिल्क और जो फ्रूट्स ले सकते हैं वो लीजिए. और अगर आप हेवी मील लेंगे तो डेफिनेटली नॉक्टर्नल मतलब कि जिसकी वजह से आपको उठना पड़ता है. दैट व्हाट आई होप योर हर क्वेश्चन टू मी वाज कि कहीं नॉक्टर्नल जिसमें एसिड रिफ्लक्स के चक्कर में उठना पड़ता है. तो ऐसे अगर एसिड रिफ्लक्स होते हैं तो उस एसिड रिफ्लक्स में आजकल न्यू ट्रेंड में लाइफस्टाइल के साथ साथ हम बोलते हैं कि बेड का हेड एंड थोड़ा सा ऊपर रखिए ताकि जो रिफ्लक्स हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए. ये सब है. दीज आर द थिंग्स दैट वी यूजुअली रिकमेंड. या डॉक्टर साहब आप जब थे नहीं यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट कैन बी द ऑप्शन फॉर डिनर. this was a question. So I again see a question here. What can be the option for dinner if we don't eat roti and rice? Eat roti and rice. Yes, you have a lot of options other than roti and rice. Salad is good. If you don't have eat roti and rice, you have जितनी टाइप की दाल लीजिए, जो सब्जी बनी है वो खाइए, दही खाइए, दूध लीजिए, सलाद खाइए, सैलेड्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जो भी चीज़ है हर ऑप्शन आपके आगे खुला हुआ है कि रोटी और सूप पीजिए. मतलब जो भी चीज़ है, मैं मना नहीं कर रहा कि कोई लोग तो बाउल ऑफ पूरी सैलेड खा जाते हैं कि भाई डिनर में क्या खाया, सैलेड खा लिया. डिनर में कोई कहता नहीं जी मुझे तो जब तक नमक ना खाऊं तो दाल जो बनी है दाल सब्जी मिक्स कर लीजिए, दही के साथ वो खा लीजिए. तो ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं अदर देन ईट रोटी एंड राइस. और आप देखिएगा कि अगर आप राइस और रोटी छोड़ दोगे तो यू स्टार्ट फीलिंग बेटर विद दोज जीआई प्रॉब्लम दैट यू हैव. Yes, you will feel more lighter on your stomach. Doctor, one more question is there. What There is is a the best question time from to have milk? Avantika. Yeah. Yes. What is the best time to have milk? You should have milk. You should have milk 4 times a day. अगर मेरा बस चले तो दूध होगा. I have been born and brought up in the family of a farmer family. I am a student of. I am a son of a farmer. तो दूध से बढ़िया प्रोटीन मैं कहता हूँ अंडे और दूध से बढ़िया कोई प्रोटीन नेचुरल. टू बी फ्रैंक टू यू आई टेल यू कि अब लोग मेरे से पूछते हैं और मैं जीआई में देखता हूँ रूपा कि लैक्टोलोज इंटॉलरेंस हो रहा है. बट दूध और अंडे से बढ़कर कोई बढ़िया प्रोटीन्स यू वुड बी नोइंग. यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट. मेरा ब्रेकफास्ट पता है महीने में अगर 365 दिन होते हैं तो मेरा नाश्ते में अंडा और दूध होना इज अ मैंडेटरी थिंग. मेरा नाश्ता ही अंडे और दूध के बगैर कभी नहीं पूरा होता. तो मेरा एवरीडे आई टेक मिल्क इन मैं दूध एग इन एनी फॉर्म. कुछ भी किसी फॉर्म में एग हो, हाफ फ्राई हो, बॉइल्ड हो, ऑमलेट हो. तो अगर ये चीजें हैं, अगर ये चीजें हम फॉलो करें तो दूध व्हाट दैट अवंतिका तो 4 बार तो नहीं कहूंगा अवंतिका, लेकिन एटलीस्ट इफ इवन यू आर हैविंग ट्वाइस अ डे मिल्क, मेक श्योर यू शुड हैव इट. लोग आज की तारीख में कैल्शियम की गोली खाना चाहते हैं लेकिन दूध नहीं पीना चाहते. क्या मतलब अगेन दैट इज आई डू हैव दोस पेशेंट्स आल्सो who would अबे गोली when something can be until unless you are not lactose intolerance कि आपको दूध पचता नहीं है, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, भाई बैटरी गई. बिल्कुल. सो प्लीज दूध पीजिए, अंडे खाइए, चिकन खाइए, सब कुछ खाइए, जो मन करता है वो खाइए, लिमिट में खाइए, बैलेंस योर कैलोरीज. बस किसी भी चीज को ओवरडू मत कीजिए. दैट इज इट. एंड मिल्क इज अ वेरी गुड ऑप्शन. कुछ ना मिले खाने को तो दूध का ग्लास भर के पी के सो जाइए. नो वरीज, you are done for the day. And I think sir is again, there is some major connectivity issue, so let him come back. And any other question anyone has, so please aap abhi pooch lijiye so that I can just when sir comes we will just add on and then we just wind up the session. Milk is very important. रात को हल्दी का दूध is therapeutic. जिनको जो रनिंग करते हैं या जिनको चोट लग गई, कोई गिर गया, सो उनको भी दूध में हल्दी डाल के रात को पीजिए. वो आपको अंदर तक आपको क्योर भी करेगी, आपकी दर्द भी दूर होगी. एंड अपना मॉर्निंग में 1 कप ऑफ मिल्क इज वेरी गुड. जिस तरीके से भी कोल्ड कॉफी है या जैसे भी पीना चाहे आप पी सकते हैं. आजकल ओट्स दूध में भिगोकर ऊपर फ्रूट डालकर
चिया सीड्स डाल के, थोड़े से नट्स डाल के खाइए with fruits. It is the best option, a best breakfast you can have. Try it out, Avantika. You will really like it. So we are just waiting for Sir to come so that we just wind up the session. Any other question and query if you have? Yeah, you're right, Yashna. Actually, May Vipul sir is one of the best doctors as regard to his work is concerned. He is and very, very warm. And thank you, Pooja Bhabhi. It was nice to see you here with your question. I'm just waiting for Sir to connect back. Any other question, any other query you have? Please, the crux of the whole session, what I found is that your lifestyle should be very good. Adopt clean eating. Sleep patterns को define कीजिए अपने. You should sleep on time. खाने के patterns को define कीजिए. What you want to eat. Portion control करिए. Control your portions of what you're eating. Choices healthy करिए ताकि आपको ना acidity हो ना bloating हो. Drink a lot of water. Coconut milk, coconut juice है. Water के बहुत सारे forms हैं. वो लीजिए. I think Dr. Saab is coming. We're just letting him come and then we can, yeah, Vipul. So, you can hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Now it's fine. Yes, I can. You can hear me. Yes. Yeah. So I think Vipul, आप कुछ अपनी तरफ से लोगों को एक एडवाइस दीजिए before we just wind up the session. We are just waiting for your advice from your side to all of us out there. जिनको दूध की बात हो रही थी तो taking 2 बार Yeah, हाँ जी Vipul. Yes sir. Can you hear me? कुछ नेटवर्क का हाँ, I can hear you. हाँ जी. So we were talking about milk. As I said, कि 2 बार का to have a 2 glass of milk, one in the morning during breakfast and one at bedtime is always a healthy thing. और इससे जो हमारा जो bowel habits है वो भी ठीक रहता है and obviously it is a good source of protein, as I said before. Yes. And Dr. Saab, to wind up the session, आप अपनी तरफ से जो advice देना चाहते हैं regarding all this, please sum up the session with your advice to all of us. Sum up advice would be that live a life, a balanced life, जहाँ पे you have a good working day schedule, a good sleep and a good meal. It includes all the 3 meals. तो अगर नींद भी ठीक होगी, काम भी ठीक होगा, खाली बैठे भी again that would add on to your troubles more. So you should have a good working schedule, a good meal and a good sleep. अगर ये 3 चीज ठीक है तो you would never have all these जो आज हमने गैस से रिलेटेड जो बात करी ऊपर, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं. ट्राई, मैं कहता हूँ कि चलो, लेकिन जितना इसको बैलेंस कर सकें उसको बैलेंस करके रखें और everyone would have a healthy life. Stay safe from corona. बताना चाहूँगा again, other than food, I've been told that the third wave would definitely. So make sure that you are taking care, maintain distance, social distancing, mask जरूर पहनिए. That's something through Rupa, through this program I would tell all कि अभी we had a bad horrible time with the second wave. Actually, third wave, yes. I've been told जितना पढ़ रहे हैं कि that could come. So make sure that आप पहले even take precautions. With that, stay safe, stay healthy. Thank you. And I would just, from Vipul sir, thank you so much for sparing your valuable time in coming. आप सब अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, healthy जिए, and stay happy. That is so important.
खुश रहें, खुशियां फैलाएं, तो सब कुछ ठीक रहेगा. एंड विजिट अ डॉक्टर जहां आपको लगे डाउट, any doubt with your health, don't take a chance. Go and visit your doctor. Consult immediately. Your life is very precious. And thank you so much, sir, for sparing your time and coming. It was a pleasure having you with us. Thank you. Pleasure is all mine, Rupa. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.